A very good evening to every one of you. This is Pankaj Ajite, and here we are with our The Hindu Quiz, episode number 7. So I'm clearly audible and visible to every one of you. We can start the quiz. Herein we are going to discuss 50 questions from last 1 week. तो last एक हफ्ते के जो The Hindu Quiz basically उसमें ऐसा होता है. The passages are directly taken from the Hindu only. And these passages normally we have discussed in our discussions, right? जो हमारा डेली डिस्कशन होता है क्विज द हिंदू का उसमें ये सारे के सारे नॉर्मली पैसेज हम लोगों ने डिस्कस किए होते हैं. तो बेसिस दोस 10 passages we ask 50 questions and this quiz is in the form of Menti quiz. So I'm going to give you one code and this QR code is going to be there. It says scan karke you can be part of the quiz and if you end up winning the quiz you may end up winning the prize at the same time. So before I start my discussion, just आपको जो एक हमेशा एक रिचुअल होता है, you need to confirm whether I'm clearly audible and visible to every one of you. Yes, very good evening to everyone. Sushma, Sanchita, Gaurav, Samiksha, Astha, and all. A very good evening. ठीक है? अब clearly audible है, तो this is the code I'm going to give you. This is the Manti code is 24195376 and QR code is, I believe it is visible to you and it will be more so visible. चलिए, so this is the QR code. Scan this QR code. Go to menti.com, key in the code 24195376. आप उसको key in कर सकते हैं या कि आप इसे scan भी कर सकते हैं. तो even if you've got two devices, you can use those two devices. Even if not, then you can use one device. आप सीधे menti.com पर जाइए और you be part of the quiz. Okay? Yes, very good evening, everyone of you. Again, I'm writing this code here. This is 24195376. Go to menti.com. 24195376 menti.com. Right? Chaliye. So if you're prepared enough, then we can start our discussion. Just एक बार prepare हो जाए. You are ready for the quiz. Just let me know. I'll start right away. I'll start the quiz. Okay? बट इसमें आपसे एक इम्पॉर्टेंट दिस गुजारिश है, आपसे निवेदन है, अनुरोध है, सजेशन है कि आपको अपना नाम जो हो व्हेन यूर बिफोर जस्ट बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी गिवन दिस टाइम व्हेन यू नीड टू की इन योर नेम. जस्ट ट्राई टू की इन योर करेक्ट नेम हियर एंड ऑल दो सूडो नेम्स जो वहां पर बाय डिफॉल्ट आते हैं, कोशिश करके वो कंटिन्यू ना करें. आपको वहां पर अपना सही नाम अंकित करना है. तो चलिए, ग्रेट. इफ यू आर रेडी देन वी कैन स्टार्ट. चलिए, ग्रेट, वेरी गुड. सो So we are going to start the quiz now, but before I start the quiz, this is the book which you are going to get. You know, name of the book is 100 Years of Solitude. And this is a Nobel Prize winning author की किताब है, right? A very beautiful book. ये आपको reward में मिलेगी if you end up winning the quiz. If you end up being the winner of the quiz, this book will be given to you. है clear? चलिए, I'll give you time. Don't worry. Take your time, but we'll start then. Just confirm. तो कारगिल, if you're just फटाफट कर लीजिए. So if you've got two devices, you can use both. Or at one part, you will be having the YouTube before you. Another quiz attempt कर सकते हैं. If you've got one device, directly go to menti.com, key in the code, and you can start the quiz there itself. But don't. I'll suggest you not to answer here. Try to answer there at Menti only. कोशिश करके Menti पर ही आंसर करना है. बढ़िया, आगे चलिए. रेडी नाउ. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैसेज. अब देखिए, फर्स्ट पैसेज जो होगा, आपको एवरी पैसेज यू विल बी गिवन 20 सेकंड टू रीड द पैसेज, है ना. आई विल बी गिविंग यू 20 सेकंड टू रीड द पैसेज. पोस्ट रीडिंग दिस पैसेज यू नीड टू प्रोसीड टू द एमसीक्यूज, है ना. आपको एमसीक्यूज पर जाना है उसके बाद में, राइट. तो उसके बाद में मतलब ओनली 20 सेकंड विल बी गिवन टू यू. विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्विज एंड दिस इज द फर्स्ट पैसेज बिफोर यू. Your 20 seconds starts now. Read the passage. It is taken from the Hindu only regarding one this global debt जो बड़ा हायर साइड पे गया है, उससे रिगार्डिंग ये एक पैसेज था, एक आर्टिकल था. उस आर्टिकल से लिया गया है. 20 seconds you need to read. चलिए, 20 seconds are over. I am coming over to the first question. ना, this is the first question of the day. Herein you need to key in your correct name. यहाँ पर आपको अगर संभव हो तो आपको अपना सही नाम यहाँ पर अंकित करना है. तो राइट की इन द करेक्ट नेम ओनली. सही नाम रखिए यहाँ पर.
सूडोनेम्स जो पुराने दिए जाते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो नहीं वर्क करेंगे, आपको अपना सही नाम रखना है। राइट, चलिए, मतलब कीन करना है। बड़े आगे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What was the total global debt at the end of June 2023 according to IF report? चलिए, वेरी गुड। इट वाज $307 ट्रिलियन का टोटल, दुनिया भर में जितना भी हम लोन की बात करते हैं, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट्स एंड जो अदर लोन्स होते हैं, उनका टोटल मिला जाए तो फिनोमिनल इट इज $307 ट्रिलियन का लोन है। कितना? $360 ट्रिलियन का लोन है। इट इज ऑन अ वेरी हायर साइड, अभी तक का हाईएस्ट माना जा रहा है इसको। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखें तो सेकंड क्वेश्चन इज बिफोर यू, कम डाउन टू दिस क्वेश्चन, ट्राई आंसरिंग दिस। एंड आई विल बी ऑन अ थोड़ा क्विकर फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ राइज इन ग्लोबल डेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर? इस वर्ष के फर्स्ट हाफ की बात करें, सो जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, इनके द्वारा लिया गया लोन कितना प्रतिशत है? These countries are so called in fact advanced nation, they have gone for taking the overall percentage जो है टोटल जो डेट लिया गया पहले हाफ ऑफ 2023 में, राइट, उसमें इनका परसेंटेज इज मोर देन 80%। द ओवरऑल टेकन लोन में दीज एडवांस इकोनॉमीज हैव टेकन मोर लोन्स, दे हैव गॉट more than 80% been taken by these economies only, right? Then we come down to question number 3. What does inflating away the debt means? This was one particular phrase, usage यहाँ पर बोला गया था, inflating away the debt। इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लेटिंग अवे द डेट मतलब आप क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली डेट को इन्फ्लेशन में तब्दील कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? व्हेन यू प्रिंट एक देश द्वारा जब अपनी जो प्रिंट की जाती है, अपनी जो करेंसी है ना, उसका प्रिंटिंग की जाती है, उस करेंसी का इस्तेमाल करके वो डेट पेमेंट जो कर रहे होते हैं, मतलब प्रिंटिंग करेंसी, बाइंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड मेकिंग पेमेंट ऑन बेस ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, व्हाट दे आर डूइंग, अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट करके अपना डेट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आगे जाके इट बिकम्स मोर सो डेट्रीमेंटल। तो inflating our debt means printing currency and paying the debt basis of those currency, है ना? तो using freshly created currency to pay off the outstanding government debt is called inflating away the debt, right? चलिए, then we come to question number 4. Which of the following events is linked to US Federal Reserve's easy credit policy? है ना, यूएस फेडरल रिजर्व मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का आरबीआई, मतलब वहां का सेंट्रल बैंक, उनके द्वारा इजी क्रेडिट पॉलिसी मतलब कम इंटरेस्ट पर क्रेडिट देने की जो पॉलिसी ना उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी वे बैक इन 2008, 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो उस क्राइसिस से उबरने के लिए उनके द्वारा कम रेट पर लोन प्रोवाइड किए गए, मतलब उनके यहाँ जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको कम किया गया, right? So that happened in year 2008 when they went for this easy loans, loans at a very lower rate way back in 2008, 2008 की यहाँ पर बात की गई, जो कि जस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जस्ट बाद में उनके द्वारा ये कम रेट के लोन जो थे वो दिए गए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर शुड बी बी ओनली। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आंसर दिस। Why has servicing government debt been manageable over the past decade? जब इतना लोन बढ़ा है, इतने जब डेट रहे, उसके बाद भी सर्विस करना, मतलब उसको इतना चुका पाना, उसको पेमेंट कर पाना इतना आसान। सर्विसिंग द लोन मतलब व्हेन यू आर पेइंग द ईएमआई, व्हेन यू आर पेइंग योर ईएमआई इन द सेंस जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं, जो आपका एनुअल पेमेंट आपको करना होता है, दैट वाज इजियर टू डू बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफिकली फ्रॉम यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, उनका जो जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा था, that was on a lighter side, है ना? So that is the reason, because of the extremely low interest rate, especially by the Western economies, these servicing these loans were on a easier side. That is why ये sustain इतने दिन तक कर पाए हैं। With this was our first passage. I am coming to passage number 2, and this 20 seconds started. You read the passage and then you answer, है ना? बब्बर खालसा इंटरनेशनल रेटेड जो इशू था उससे ताल्लुक में यहाँ पर पैसेज पूछा गया है। इंडिया इंडिया एंड कनाडा इशू की हम जब बात करते हैं, चलिए 20 seconds are over. This is the question number 6, first question of the passage. And first question talks about which event was associated with the formation of Babbar Khalsa International.
देखिए इसमें केवल 3 लोगों ने, सॉरी केवल 10 लोगों ने इसमें करेक्ट आंसर दिया। दिस इवेंट वाज रिलेटेड टू क्लैश बिटवीन टू सेट्स, है ना। और इन दो जो ग्रुप में एक तरीके से क्लैश हुआ था 1978 में हुआ था। तो 1978 में एक क्लैश के कारण पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है ना उसकी स्थापना हुई थी ना, उसको स्टार्ट किया गया। इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप इन अ वे। और उनको स्थापना जो हुई थी 1978 में एंडेड मतलब स्टार्टेड विद क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। हु फाउंडेड द बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग दिस बब्बर खालसा इंटरनेशनल, की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सुखदेव सिंह बब्बर एंड तलविंदर सिंह पवार आर द टू इंडिविजुअल्स जिनके द्वारा स्टार्ट किया था। वन ऑफ देम इज नो मोर देयर, अनदर स्टिल देयर। इन दो लोगों के द्वारा बब्बर खालसा, एक का इसमें पुलिस फायरिंग में मारे गए थे और बाकी वन इज स्टिल अलाइव, इनके द्वारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल वॉज स्टार्टेड। तो एश इज इनफैक्ट करेक्ट आंसर। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8। बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया 182 तनिष्क जो प्लेन था was conducted by बब्बर खालसा इंटरनेशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस वर्ष में ये बॉम्बिंग जो है वो की गई थी? अराउंड 329 पीपल डाइड इन दिस, है ना। दिस वाज एयर इंडिया फ्लाइट जो थी, इसमें बॉम्बिंग की गई थी। 329 पीपल डाइड, मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फ्रॉम कनाडा ओनली एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड इन 1985। 1985 में इंसिडेंट हुआ था, राइट। 1985 इंसिडेंट हैपेंड। एंड बेसिकली जो हम लोग ओवरऑल हमारा इंडिया कनाडा के ताल्लुकात की बात करते हैं तो 1975-76 से लेकर अब तक इन ऑल दीज केसेस हम लोग देखते हैं। तो ये जो हॉस्टिलिटी है वो ये रीजन यहाँ पर है बिकॉज Canada has always given shelter to these groups, extremist groups. तो यहाँ पर this 1985 this incident wherein Air India flight was bombed, 329 people mostly belonging to Canada they died in this, right? तो कब हुआ था ये? तनिष्क इसका जो नाम होता था एयर इंडिया फ्लाइट का 182 एंड दैट उसमें इंसिडेंट हुआ था 1985 was the time, right? Then question number 9. BK is headquartered at which of the following place? Great, I'll take into account. Don't worry, Ansh. Where is Dubba Khasa International headquarter? इनका headquarter कहाँ पर होता है? It is headquartered in Lahore only. देखिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ अगर लग रहे हो ना बेटा, तो जो हमने डिस्कशन किया था व्हेन दिस पैसेजेस वर देयर इन द हिंदू, अगर पढ़े हो तो यू विल बी एबल यू मस्ट हैव बीन एबल टू आंसर, राइट। सो दिस हेडक्वार्टर जो इसका होता है वो लाहौर में होता है। इट्स नॉट एट ऑल इन इंडिया और इन कनाडा, इट इज इन लाहौर ओनली बिकॉज बेसिकली जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं इनको आईएसआई द्वारा वहां पर सपोर्ट किया जाता है। तो लाहौर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हेड ऑफिस है या उनका हेडक्वार्टर इसको बोला गया है, राइट। Then we come to the last question of this passage, and this question is related to one this IPS officer जिनके द्वारा जो पंजाब समस्या was there in 1990s में इशू था। तो इनके द्वारा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के वहां पर इसे एलिमिनेट किया गया था, इसको वहां से जिसको बोलना चाहिए खत्म किया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएस ऑफिसर वाज देयर अंडर हिज लीडरशिप, है ना, ये प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट जो उस समय थे उनका वहां पर जिसको बनाना चाहिए उनको वहां फिनिश ऑफ किया गया। तो इट वाज आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल एंड ही वाज लाइक इनफैक्ट उनको बाद में जम्मू कश्मीर कमान भी दी जा रही थी बट समथिंग हैपेंड एंड ही कुड नॉट कंटिन्यू। तो केपीएस गिल जो थे उनकी कमांड में जो पंजाब समस्या जिसको पंजाब टेररिज्म जो कहा जाता है उनकी कमांड में यहाँ से टेररिज्म जो है खत्म किया गया था। इट वाज इन 1990s की बात है ना, इनिशियल ईयर्स ऑफ 1990s का, हम 90 के दशक की बात बोले तो केपीएस गिल वाज द आईपीएस ऑफिसर। क्लियर? तो सी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। तो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट टू पैसेजेस. And after these 10 questions, this is going to be the leaderboard. Mostly, hopefully, you find your name in this leaderboard. So again, the last week's winner, Mithil, is still leading with around 5,000. Okay, sorry, Mithil needs Manish now. Yeah? So Manish is leading, followed by Mithil, Akshara, Arunima, Gaurav, Mahek, Earthman. Earthman, you need to confirm your correct name here. Okay, and Basava, Manita, and Rajvansh. So these are the top 10 contenders at this point of time. After 10 questions, when only 2 passages have been discussed. There's still 40 questions are left. There are around 8 passages abhi bache hain. In 8 passages, may still you can do better. And herein, if you want to score well, if you want to score better, you need to answer correctly first thing first, and then you need to answer as quickly as possible because every question is not carrying same marks.
बट देन जितना जल्दी आंसर करते हो उतना स्कोर आपको ज्यादा मिलता है। दैट इज वाई यहाँ पर ये जो मार्क्स देख रहे हैं, इनमें डिस्पैरिटी जो यहाँ दिख रही है ना, जो अंतर यहाँ पर दिख रहा है, उसका ये रीजन है कि अगर आपने सही आंसर किया और जल्दी आंसर कर दिया तो स्कोर ज्यादा होगा, लेट आंसर किया तो स्कोर कम होगा। तो आंसर क्विकली, but above all, answer correctly first thing first. So these were the two passages. Herein we are coming down to the third passage. Your time starts now. Read the passage and then answer. Again, passage is based on G20 summit जो अभी हुई है, right? और उस पर अभी तक आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड पैसेज यहाँ पर दिया गया है। 20 सेकंड बीइंग गिवन टू यू। चलिए 20 seconds are over. Coming over to question number 11. Okay. How many non-member countries did India invite to the G20 summit? G20 summit में भारत द्वारा कितनी नॉन-मेंबर कंट्रीज को बुलाया गया था जो कि G20 के मेंबर नहीं थे? उनमें से भारत द्वारा किस किस को इनवाइट किया गया था, राइट? तो एनीवे आपसे कोई नाम तो नहीं पूछा गया, यहाँ पर केवल काउंट पूछा गया है। एंड देयर वर 9 countries, 9 non G20 nations इंडिया इनवाइटेड, एंड मोस्टली इसमें मिडिल ईस्टर्न नेशंस ज्यादा थे। तो दिस नॉन, अगर हम लोग नेशंस की बात करें, नॉन मेंबर कंट्रीज की हम लोग बात करें, तो 9 countries वर देयर फर्स्ट ऑफ, एंड दीज 9 countries वर बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। तो ये 9 देश ऐसे थे जिनको भारत द्वारा गेस्ट कंट्रीज की तरह इनवाइट किया गया था। तो here in the correct answer should be 9 only. 9 countries were invited as the guests along with the G20 members. मतलब 19 देश, और उनमें एक हम इंक्लूड करें तो G20 में आता है आपका यूरोपियन यूनियन, इन्हें इनवाइट किया गया था along with obviously अफ्रीकन यूनियन के जो हेड थे वो भी यहाँ पर थे। सो दिस 9 countries were invited as the guest, जो आपसे काउंट केवल यहाँ पर पूछा गया था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओनली 9 nations were guest countries for G20, right? Then we come down to question number 12. चलिए आंसर दिस। क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कंट्री है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्डर जो बनाया जा रहा है उसका हिस्सेदार है, इट इज मेंबर ऑफ दिस कॉरिडोर, बट दे वर नॉट इनवाइटेड, दे वर नॉट इनवाइटेड फॉर वेरियस रीजंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको मेंबर तो है कॉरिडोर का, जिसका अनाउंसमेंट किया गया था G20 में, बट इसे इनवाइट नहीं किया गया था? तो इजराइल वॉज द कंट्री विच वॉज नॉट इनवाइटेड, कॉन्स्पिकस बाय द एब्सेंस, मतलब इनवाइट नहीं किया गया था, बट देन इट वॉज अगेन सेंटर बिकॉज अनइनवाइट, इसको वहां पर मतलब प्रेजेंस नहीं रहा, जबकि इट वाज एनीवेज पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर, कॉरिडोर का हिस्सा थे, बट इनवाइट नहीं किया गया। उसका रीजन ये बताया भी गया था कि दिस वुड हैव मेड समथिंग, ना थोड़ा सा ऑकवर्ड कंडीशन यहाँ पर होती व्हेन जो बाइडेन was not talking या was not जिसको होना चाहिए इन्वॉल्व फॉर लास्ट 1 year, एंड एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, तो उनसे भी बातचीत नहीं है, तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो इसलिए ही वाज मोस्टली नॉट इनवाइटेड। तो इजराइल के नेतन्याहू जो थे वो यहाँ पर इनवाइट नहीं किए गए थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द G20 समिट, गेस्ट कंट्रीज में भी उनको इनवाइट नहीं किया गया था। तो यहाँ पर इजराइल शुड बी आवर आंसर। चलिए कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए सऊदी अरेबिया, बेसिकली ऐसा देखा जाए तो सऊदी अरेबिया, इजराइल, ऑल दीज नेशंस, दे नीड टू कम टुगेदर फॉर देयर पर्पसेस। उस ताल्लुक में सऊदी अरेबिया ने इजराइल और पैलेस्टाइन के लीडर्स हैं उनको साथ में लाने के लिए दिस ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 ये ना पीस डे एफर्ट लॉन्च किया गया। पीस डे एफर्ट मतलब उसका मोटिव क्या था कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन जो है इन दोनों के बीच में जो कटुता है बेसिकली उसको कम करने के लिए पीस द एफर्ट वाज लॉन्च बाय सऊदी अरेबिया ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 ओनली। तो यहाँ पर पीस द एफर्ट ए शुड बी द करेक्ट आंसर है, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ट्राई टू आंसर ऑन मेंटी ओनली, अभय, खुशी, हैकर्स टैग, try to answer there, already code have been provided to you. What is the primary expectation of Saudi Arabia from Israel for the diplomatic normalization of the ties? मतलब सऊदी अरबिया चाहता है कि इसराइल के साथ में जो ताल्लुकात हो, संबंध हो, वो सुधर जाएं, बट उसके लिए उनके पास जो बेसिक उनके द्वारा डिमांड की जा रही है वो ये डिमांड है कि दिस इजराइल
should accept the two nation theory जो होती है ना, जहां पर इसराइल एंड पैलेस्टाइन बोथ द नेशंस आर देयर, तो इसराइल वो चाहते हैं कि इसराइल कमिटमेंट दे कि दे शुड एक्सेप्ट दिस टू स्टेट सॉल्यूशन, टू नेशन थ्योरी, मतलब इसराइल एंड पैलेस्टाइन, दीज टू स्टेट्स आर गोइंग टू सर्वाइव, क्योंकि इसराइल चाहता है कि ओनली इसराइल रहे, पैलेस्टाइन चाहता है पैलेस्टाइन रहे, तो उस ताल्लुक में ये बोलते हैं कि इसराइल से दो स्टेट का जो कमिटमेंट है वो अगर मिलता है देन वी कैन नॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप विद द इसराइल, मतलब दिस इज द वन कंडीशन उनके द्वारा ये ऑफर की गई है. Then last question of the passage, which of the following is incorrectly matched? A very easy one, I believe this is one of the easiest question जो अभी तक पूछा गया है. इनमें से कौन सा सही है, सॉरी इनकरेक्ट है? So the following is incorrect among this, है ना, ठीक है. ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. पहला बोला गया इसराइल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट अभी मैंने कहा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, तो दैट इज करेक्ट. यूएई के एमबीजेड एंड सऊदी अरब के एमबीएस, सऊदी अरब के एमबीएस मतलब मोहम्मद बिन सलमान, मैंने अभी कहा भी था. तीसरे जो होते हैं वो एमबीजेड है ना, ये होते हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान, है ना, नहायान, तो वो जो होते हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट. तो इनके तीन हेड जो उसको बोलना चाहिए, तो ये तीन यहाँ पर जो दिए गए ऑल आर करेक्टली, और मतलब करेक्ट ऑप्शन ये दिए गए, ऑल आर करेक्ट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. With this, we come to the passage number 4, and this is the 20 seconds you are being given. Read the passage, and this is regarding this फुकुशिमा डिजास्टर जो था, उसका जो अभी वाटर जो होता है वो फ्लो किया जा रहा है समुद्र में, उससे रिलेटेड वन इशू वाज देयर, उस पर एक आर्टिकल था, वहां से पैसे लिया गया है. चलिए, your 20 seconds are over. I am coming to question number first, that is question number 16. What is the primary reason Japan decided to release the wastewater into the sea? After so many years, अब जापान द्वारा ये वेस्ट वाटर जो है उसको क्यों रिलीज किया जा रहा है, उसका बेसिक रीजन क्या है, राइट? Because they've been trying for a very long time. Now they are running out of the storage space. तो storage space उनकी अब कम होती जा रही है, उनको किस तरीके पर रिलीज करना था, तो उनके द्वारा उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद में इस पूरे जो न्यूक्लियर डिजास्टर वहां पर हुआ था, उस न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद में उस पूरा जो पानी वहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर वाला जो वाटर था उसको उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में दे आर सेइंग इट इज हार्मलेस नाउ, and now we have treated it to at utmost possible level, and now we are releasing into the water, we are releasing into the ocean, वहां सी में से ओशन में वहां पर इसको रिलीज किया जा रहा है. तो बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ, जिसको बोलना चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी, so that is why it is being released, and even releasing this water is going to take years for them. ये आगे बहुत सालों तक रिलीज होता रहेगा, अराउंड 30 years it is going to take, जो वहां पर बताया गया है. तो इनके द्वारा दे हैव गॉन दी आउट ऑफ द वेस्ट वाटर दिस स्टोरेज कैपेसिटी, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर रिलीजिंग दिस वाटर, राइट? उससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखें. विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट डज द एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम, जो मैंने कहा ना वाटर ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसमें इसको रिमूव नहीं किया जा सका है, दिस हैज नॉट बीन रिमूव्ड. चलिए, वेरी गुड. ऑल दी फोर ऑप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टी, जो कि थोड़ा याद किया और थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होना ही था, राइट? सो यहाँ पर ट्रिटियम जो एक दिस एलिमेंट होता है, न्यूक्लियर एलिमेंट जिसको हम बोले, दैट कुड नॉट बी एलिमिनेटेड बारिंग दैट, और उसको भी जितना यथावत पॉसिबल लेवल पर उसको कम किया जा चुका है. अब इसमें बोला गया आईएईए के अनुसार कि दिस इज अ लेवल विच इज एक्सेप्टेबल वन, उनके द्वारा इसको एक तरीके से अप्रूव किया गया, तो ओनली दिस पर्टिकुलर ट्रिटियम जो होता है ना, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट न्यूक्लियर एलिमेंट वहां पर होते हैं उनको इससे उस ट्रीटमेंट के द्वारा बेसिकली इस एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा उसको क्लीन किया जा चुका है. ट्रिटियम इज वेरी क्लोज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्लोज होता है, इसलिए उसको वाटर से एलिमिनेट करना करीब करीब असंभव है, मतलब दैट इज इम्पॉसिबल इन अ वे. So that cannot be done. Other than all the other elements, they have been properly treated in the water. Is being तो उसको ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा कहा जा रहा है कि now this water is utmost इसको क्लीन किया जा चुका है, that can be released. तो ट्रीटियम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं वहां से क्लीन किए जा चुके हैं. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. आंसर दिस. When did the catastrophic event led to Fukushima this disaster occur?
इन विच ईयर बेसिकली ये जो फुकुशिमा डिजास्टर की बात करते हैं किस साल हुआ था? देखिए 2011 में वहां पर पहले तो देयर वाज दिस पर्टिकुलर इसको बोलना चाहिए अर्थक्वेक के कारण पर दिस वाज सुनामी, एंड सुनामी के कारण पर वहां पर दिस डिजास्टर जो सी कोस्ट पर होता है, दिस फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हैपेंड, राइट? तो दिस वाज ईयर 2011, 2011 में डिजास्टर हुआ था। और 2011 के बाद से दे कुड नॉट रन दिस प्लांट, उनके द्वारा इस प्लांट को नहीं रन किया गया था। उनका ओवरऑल जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी की जो कैपेसिटी थी, दैट ड्रास्टिकली वेंट डाउन बाय मेनी परसेंटेज। और इनफैक्ट उस डिजास्टर से सबक लेकर कई सारे देशों ने प्रण किया था। उसमें एक जर्मनी था जिनके द्वारा प्रण किया गया था कि वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर न्यूक्लियर पावर बिकॉज दिस कैन बी सो हार्मफुल इन टाइम टू कम, डेट्रीमेंटल। तो जर्मनी द्वारा अभी लास्ट न्यूक्लियर पावर जो उनका जो प्लांट होता है उनको अभी बंद किया गया है। यहाँ पर दिस वाज ईयर 2011, दिस सुनामी, दिस अर्थक्वेक लीडिंग टू सुनामी, सुनामी लीडिंग टू दिस पर्टिकुलर डिजास्टर, ईयर 2011 शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 19। Yes, beta, 2011 is the correct answer, but I request you to give answer on Menti only. Menti पर क्वेश्चन करके आंसर करिए. What percentage of Japan's electricity needs were met via nuclear reactors before 2011 earthquake? मतलब इससे आपको प्रेजेंट नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि उस समय जब ये डिजास्टर नहीं हुआ था उसके पहले जापान की जो इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट थी, उसका कितना परसेंट न्यूक्लियर पावर से आता था। और अब अगर देखें तो नाउ प्रेजेंट 10% है। द प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर एनर्जी, दिस पावर रिक्वायरमेंट जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है, वह न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा 10% प्रोवाइड किया जाता है। बिफोर दिस डिजास्टर 30% प्रोवाइड किया जाता था। तो यहाँ वही पूछा गया थे, बिफोर द डिजास्टर what percentage of this electricity was supplied through nuclear power? Earlier it was 30%, now it has gone down to 10%। अब ये 10% पर पहुंच गया, पहले ये 30% होता था। तो herein the correct answer should be C only, right? Coming to question number 20. This is question number 20. Try answering this question. चलिए, यहाँ पूछा गया था कि बिकॉज जब ये इनके द्वारा दिस न्यूक्लियर दिस वाटर इज बीइंग रिलीज इन द सी, सो विच नेशन हैव टेकन, यू नो, दे आर प्रोटेस्टिंग, जिस किस नेशन द्वारा इस पे बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया, इसका विरोध किया गया, और किन के द्वारा इस पर्टिकुलर जो सी फूड वहां से इंपोर्ट होता है जापान से, उसको लेने से इनकार कर दिया गया, उसको बैन लगा दिया गया। सो देखिए, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट जापान, देयर ओन कंट्री इज नॉट फेवरिंग दिस रिलीज ऑफ वाटर। साउथ कोरिया के द्वारा वहां 80% लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। खैर, उनके साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने जापानीज प्रेसिडेंट के साथ में सी फूड जो वहाँ तैयार किया गया उसको उनके द्वारा जिसको कंज्यूम किया गया है, तो जस्ट टू गिव द अश्योरेंस टू पीपल कि दिस इज सेफ। बट चाइना के साथ में जापान की पहले से हॉस्टिलिटी है, एंड चाइना हैज गॉट अनदर रीजन टू गो अगेंस्ट जापान दियर। तो उनके द्वारा ही सी फूड जो वहां से इंपोर्ट होता था जापानीज, उसको यहाँ पर बैन लगा दिया गया। तो करेक्ट आंसर शुड बी चाइना ओनली। चाइना हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। Coming to the second leaderboard after these 20 questions. So this is the leaderboard. Herein, I've told you it is going to change. It is going to change rapidly because so many questions are there, and level भी थोड़ा तो इसको बोलना चाहिए higher side में माने। तो now Akshara is leading with 12,442 points and very closely followed by Mithil with 185 point, followed by Gaurav, Basava, this Mahek, Tom, Ansh, Onkar, Anna, and Laksh. तो यहाँ पर these are the 10 players at this point of time. We have 20 questions are over, 30 are still left, 6 passes are there. I'm going to start with the passage number 5. This 20 seconds are being given. Read the passage. Azerbaijan, Armenia, Nagorno-Karabakh, while this particular topic is there, I believe that has been has been discussed, and you must be able to answer this. 20 seconds are being given to you. Read the passage carefully and then answer. चलिए, 20 seconds are over. This is the question number 21, है ना? चलिए, answer this. And this is quite an easy passage because पढ़ा होगा आपने, you must be aware of this. What name do this Armenians traditionally use Nagorno-Karabakh को किस नाम से पुकारते हैं? अर्थसाक जो होता है ना, ये उनका नाम है। मतलब नागोर्नो कराबाख जो इलाका है, दैट पर्टिकुलर एरिया बाय द अर्मेनियंस, इट इज कॉल्ड अर्थसाक। इसको अर्थसाक कहा जाता है।
और ये वहां पर पहले एक दिस वन आर्काक्स ARCX दिस वन पर्टिकुलर जिसको ना फ्रांस से ये नाम वहां पर लिया गया है, एंड दे कॉल देम आर्साक। ये खुद को रिकॉग्नाइज तो करते हैं बट दुनिया में इन इस पर्टिकुलर जगह को इसके पहले कोई रिकॉग्नाइज नहीं, मतलब किसी भी देश द्वारा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इट इज बीइंग टेकन एज द पार्ट ऑफ अजरबैजान, एंड फाइनली अजरबैजान ने इस पर कंट्रोल भी कर लिया है। दिस आर्साक इज द नेम व्हिच अर्मेनियंस ट्रेडिशनली कॉल नगोर्नो कराबाख इलाके को अर्मेनियंस द्वारा आर्साक ही कहा जाता है, राइट। Then coming over to question number 22. In which of the following year Nagorno-Karabakh was declared an autonomous region within Azerbaijan? देखिए ड्यूरिंग यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उस समय 1923 में लेनिन के द्वारा इस पर्टिकुलर प्लेस को एक ऑटोनॉमस रीजन घोषित किया गया था विद इन अजरबैजान, बिकॉज पीपल हियर मोस्टली 95% ऑफ देम वर अर्मेनियंस। तो उन्होंने अजरबैजान के अंदर, मतलब अजरबैजान के अंतर्गत दिस पर्टिकुलर रीजन वाज डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमस वे बैक इन 1923, और तब से इट वाज फाइन, बट देन इन 1988 ऑनवर्ड्स इस पर यहाँ लड़ाई स्टार्ट हुई थी, right? So 1923 this place was declared autonomous region within Azerbaijan, अजरबैजान के अंदर इसे autonomous region तब 1923 में घोषित किया गया था, right? चलिए, Kushi, simply go to menti.com, key in the code, you'll be able to answer. This code is 24195376. Go to menti.com, key in the code, right away you can start attempting the questions. Okay. What did Azerbaijan do that caused economic difficulties for the population of Nagorno-Karabakh? अब देखिए क्या किया गया था। अर्मेनिया से अजरबैजान, सॉरी अर्मेनिया से नगोर्नो कराबाख के बीच में देयर वाज दिस वन कॉरिडोर। उस कॉरिडोर को अजरबैजान द्वारा उसको रोक दिया गया, जिसको लेचिन कॉरिडोर, LSCHIN लेचिन कॉरिडोर बोलते हैं। उसको ब्लॉकेड बना दिया गया, मतलब पहले वहां पर बोला गया कि सम दिस एनवायरमेंटल this protest is going on, the eco activists are there, but ultimately they were all soldiers and officers of this Azerbaijan। तो अजरबैजान द्वारा इसको पहले ब्लॉक कर दिया गया था और उसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो उसके कारण पे दीज कंप्लीट 1.2 लाख पीपल दे वर सफरिंग विदाउट फूड, शेल्टर, फूड एंड एवरीथिंग, सप्लाई वहां पर रोक दिया गया था। So they blockaded the Lechin corridor. That was the to make things difficult for the people who are in Nagorno-Karabakh. So economic difficulties इनसे उनके पास में आई थी। तो herein our answer should be C only, blockaded the Lechin corridor जो था वो आपको ध्यान होना चाहिए। Coming over to question number 24. अब यहाँ बोला गया है कि अल्टीमेटली व्हेन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अजरबैजान हैज कैप्चर्ड नगोर्नो कराबाख, ये जो कैप्चर अब हो पाया जो इतने वर्षों तक संभव नहीं हुआ था, उसके लिए उसके पीछे व्हाट बेसिक जियो पॉलिटिकल इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इवेंट ये है कि रशिया वाज अंडर CSTO, वाज इन अ वे प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अर्मेनिया एंड टू नगोर्नो कराबाख, and Russia was between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan एक तरीके से, but then when Russia is at present busy with the Ukraine war, इस समय with the help of Turkey, this Nagorno-Karabakh has been captured by Azerbaijan, क्योंकि they got this as a very, इसको बोलना चाहिए important opportunity, इस opportunity का इस्तेमाल करके उनके द्वारा इसको capture कर लिया गया है, which was मतलब 1923 से लेकर के अब around 100 years Nagorno-Karabakh was there. But after 1923, in 100 years, now Nagorno-Karabakh has been captured by Azerbaijan because Russia was busy with this Ukraine war, right? So Russia's invasion of Ukraine is the geopolitical event which believed to have weakened the Russia's influence in the Caucasus. Caucasus मतलब ये इलाका जो होता है ना, बेसिकली ये माउंटेनस एरिया, उससे Caucasus यहाँ पर कहा जाता है। चलिए, coming to the last question of this passage. Which sea is often referred to as world's largest lake. लेक इसलिए कहा जाता है कि इट इज बिल्कुल लैंडलॉक, जिसको सी को मान के चलें, तो इसलिए उसको सी ना बोल करके दुनिया का सबसे बड़ा लेक भी कहा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज टर्म्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक? तो इट इज कैस्पियन सी, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय दी, मतलब लैंडलॉक सी अपने आप में होता है ना, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लेक इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कैस्पियन सी शुड हैव बीन द आंसर। इसके ना ब्लैक सी, कैस्पियन सी के बीच में दिस पर्टिकुलर एरिया इज देयर,
और वहां पर दीज नेशंस आर देयर। तो ये कॉकस, ये जो हम लोग कैस्पियन सी बोलते हैं, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, इसको माना जाता है, राइट। तो वी आर कमिंग टू पैसेज नंबर 6 now. Your 20 second started. Read this passage and then we'll be coming to the question number 31. सिद्धार्थ, अर्पिता, बेटे, आई हैव गिवन यू दिस menti.com, मैंने आपको कोड भी दिया हुआ है, वहां जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 seconds over. This is question number 31. Sorry, question number 26. Okay, चलिए। Which country raised concern with the Ranil Wickramasinghe administration over the scheduled visit of Chinese research vessel to Sri Lanka? मतलब along with India, इंडिया ने इस पर पहले ऑब्जेक्शन रेस किया हुआ है। इंडिया के बाद में विच थर्ड कंट्री, मतलब अदर देन इंडिया श्रीलंका, किस देश द्वारा चाइनीज वेसल, वेसल का मतलब होता है एक शिप, Chinese ship is going to take shelter for some time in Sri Lankan waters. उसका विरोध किया जा रहा है। India has already raised concern because of the security issue we are going to face, which has happened even last year too. Now US ने भी यही कहा है कि this is an interference, basically अपने आप में गलत है। तो which country has raised the concern? It was US who went on to raise the concern to the President Ranil Wickramasinghe of Sri Lanka because this Chinese ship is going to visit this श्रीलंका, और वहां पर उनके मतलब वहां पर एक तरीके से श्रीलंका जो सी कोस्ट होता है वहां पर आने वाला है। तो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कंसर्न, बिकॉज दिस एक्सरसाइज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज विच दे आर कंडक्टिंग, टॉकिंग अबाउट सम रिसर्च दे आर गोइंग टू टेक। तो ये हमारे लिए अपने आप में सिक्योरिटी इशू है, राइट, इसलिए हमने विरोध किया था। और नाउ इवन यूएस हैज गॉन फॉर रेजिंग द कंसर्न रिगार्डिंग दिस। तो हियर इन आवर करेक्ट आंसर शुड बी दिस डी ओनली। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शिप? ये जो शिप यहाँ पर आने वाला है ना, दिस वेसल वी कॉल इट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिसर्च वेसल, सो कॉल्ड रिसर्च वेसल ऑफ श्रीलंका? यस, वेरी मच बेटा, कर सकते हैं। दिस menti.com एंड दिस कोड इज 24195376। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? जो नया वेसल जो वहां पर लाया जा रहा है, इट इज शी यान 6, है ना। शी यान 6 is the name of the vessel which is going to be coming over to the Sri Lankan waters, and for that we have raised our concern. It is going to be a security issue for India, right? चलिए, and this is not the first time this is happening. Next क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा कि लास्ट ईयर ऑल्सो सच वन सच इशू वॉज देयर, है ना। विच चाइनीज मिलिट्री शिप अराइव लास्ट ईयर श्रीलंकन, ये हम्बन तोटा पोर्ट जो होता है ना, वहां पर लास्ट ईयर अगस्त में दिस वन शिप वॉज देयर, same concern was there, same issue was there, and this one ship was given shelter. Though India has raised concern, but it was given shelter. It went there. So it was Yuan Wang 5 was the ship, जिसको रिसर्च शिप जिसको बोलते हैं ना, वो वहां पर पिछली बार आया था। Now another ship is going to be there, and this is the way China is trying to influence it. मतलब जिसको बोलना चाहिए अपने जो हेजीमनी क्रिएट वहां करना चाहता है, and trying to create trouble for India at the same time. तो उनको बोला जा रहा है कि इट्स अ रिसर्च शिप बेसिकली। तो वहां पर दिस लास्ट डेट वाज Yuan Wang, दिस ईयर इट वाज Shi Yan, right? चलिए, then coming over to question number 29. अब जो शिप आ रहा है, दिस पर्टिकुलर शिप विच इज गोइंग टू बी देयर एट दिस लंकन कोस्ट, यहाँ कितने दिनों तक इट इज गोइंग टू बी देयर, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू डू दो सो कॉल्ड रिसर्च जो इनके द्वारा की जाएगी, उसका समय काल कितना रहने वाला है, हाउ लॉन्ग दिस रिसर्च शिप इज गोइंग टू बी देयर, मतलब दिस ऑपरेटिंग शिप जो होगा ना, वहां पर कितने समय तक रहने वाला है, right? So here 80 days, for 80 days the mentioned Chinese ship will be operating in the Sri Lankan waters, है ना। यह कितने दिनों तक? तो 80 days तक ये रहने वाला, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। 80 दिनों तक ये वहां रहने वाला, अराउंड 3 months इट इज गोइंग टू बी देयर, राइट। चलिए, कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 30। बट बेटा अमूल्य, इट इज फॉर एवरीवन, सभी को उतना ही समय मिलता है, एंड इट इज नॉर्मली इट इज इनफ बिकॉज यू हैव गॉट 50 क्वेश्चंस, राइट। चलिए, the transfer of Hambantota port to China is often viewed in the context of, जिस तरीके से ये ट्रांसफर किया गया है ना, पोर्ट चाइना के द्वारा, मतलब श्रीलंका द्वारा चाइना को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसको किस तरीके से देखा जाता है दुनिया द्वारा? इट्स अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। दिस Hambantota port was being developed in Sri Lanka, but then no institute या कि जिसको organization was giving loan for it because it was seemingly unviable, economically unviable project. But China went out to fund this project.
and at a very inflated rate of interest, inflated overall this arrangement. And then with this port was, जब ये तैयार हुआ तो Sri was helpless in the regard in terms of repaying the debt. So ultimately it was handed over to Sri Lanka, to China by Sri Lanka for 99 years of lease. मतलब बनाया गया श्रीलंका द्वारा, श्रीलंका के पैसे में बनाया गया, और अल्टीमेटली इट वाज क्योंकि पेमेंट कुड नॉट बी डन, दे हैड टू गिव इट टू लीज टू चाइना, चाइना को दिया जाना पड़ा। तो चाइना द्वारा ये डेट ट्रैप जो अपने आप में डिप्लोमेसी चलाई जाती है, यहाँ पर वो एक पूरा की पूरा एक जिसको बोलना चाहिए डेट ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं फॉर स्मॉल नेशंस लाइक श्रीलंका, दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर ये बोला गया है कि इट इज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी दे हैव गॉन फॉर, राइट। चलिए, तो आफ्टर 30 क्वेश्चन दिस द लीडर बोर्ड, स्टिल 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, स्टिल 4 पैसेज आर देयर। So after 30 questions, Mithil is still leading, followed by Akshara, Basava, Gaurav, Mayak, Himanshu, Tom, Anna, and Sayan and Laksh are the top 10 contenders after 30 questions. This is passage number 7, and your time starts now. Read the passage, 20 seconds are being given, then come down to questions. Okay, 20 seconds are over, beta. This is question number 31 for you. What is the recommended daily salt intake by WHO? WHO द्वारा जो डेली सॉल्ट इंटेक जो रिकमेंड किया जाता है, द एवरेज ग्राम्स में जो हम बात करते हैं, वह रिकमेंडेड कितना है? एज इंडियंस वी टेक मोर देन व्हाट इज रिकमेंडेड, बट एग्जैक्टली रिकमेंडेड होता है ओनली 5 ग्राम, एंड वी आर टेकिंग इन द रेंज ऑफ 8 to 9 ग्राम, है ना। रिकमेंडेड कितना है? केवल 5 ग्राम WHO द्वारा रिकमेंड किया था डेली इंटेक ऑफ सॉल्ट, राइट। चलिए, अब इसमें आपको ग्रुप बताए गए हैं, इन ग्रुप में सबसे ज्यादा सॉल्ट इंटेक किन के द्वारा किया जाता है ना। विमेन, चाइल्ड, मैन एंड एडल्टी। तो एडल्टी पॉपुलेशन, एजेड पॉपुलेशन के ताल्लुक में देखें, या मैन, विमेन, चाइल्ड के ताल्लुक में देखें, तो किस पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा सबसे ज्यादा हायर इंटेक जो सॉल्ट का किया जाता है? तो यस, मैन, जो मतलब मैन के द्वारा सबसे ज्यादा, पुरुषों के द्वारा सबसे ज्यादा सॉल्ट इंटेक इसके अंदर होता है। चलिए, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 33। हाउ वाज द डायरेक्टरी सोडियम इनटेक एस्टिमेटेड इन दी स्टडी? इसमें जो डायरेक्टरी सोडियम की बात की गई ना, तो किस तरीके से इसको चेक किया गया था? यहाँ पर नन ऑफ दी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ बोला गया था थ्रू ब्लड सैंपल, बाय मेजरिंग डेली फूड इनटेक, और बाय सलाइवा सैंपल। बेसिकली दिस इनटेक जो मतलब जो ये स्टडी की गई थी, दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल के बेस पर इसे किया गया था, दैट इज व्हाई नन ऑफ दी शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम की जो इंटेक की हम बात करें ना, उसको एस्टिमेट करने के लिए 3 नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली इट वाज गॉन फॉर यूरिन सैंपल्स में चेक किया गया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी, नन ऑफ दीज शुड हैव बीन देयर। क्वेश्चन नंबर 34। अब 2025 तक, टिल 2025 जो सॉल्ट इनटेक है उसको कम किया जाना है, टू मेक इट, टू ब्रिंग इट विद इन द लिमिट्स, जो कि एप्लीकेबल लिमिट्स होती है वहां लेकर के आना है 2025 तक। तो ओवरऑल कितना परसेंटेज कम करना है, मतलब व्हाट इज द ओवरऑल टारगेट टू रिड्यूस द परसेंटेज इनटेक इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट? इट इज 30% टिल 2025। 2025 तक 30% सॉल्ट इनटेक है उसे कम किया जाना है, दैट इज द बेसिक, इसको ना चाहिए मोट, अभी ये उद्देश्य बोला गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टिल 2025 30% सॉल्ट इंटेक शुड बी, मतलब इट शुड बी लोअर्ड इन टर्म्स ऑफ द कंजप्शन। तो 2030 सॉरी 25 तक 30% इंटेक जो है वो कम किया जाना चाहिए। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35। अब इस आर्टिकल में जो ओवरऑल बताया गया था उस ताल्लुक में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मेथड है, मतलब कौन सा ऐसा एक्टिविटी बोला जाए या विच शुड बी अडॉप्टेड फॉर लोअरिंग डाउन द इंटेक ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन अवॉइड यूजिंग फूड आउटसाइड होम, क्योंकि जब बाहर खाना खाया जाता है, अदर देन होम जो खाना खाया जाता है, तो वहां पर सॉल्ट नॉर्मली ना हायर साइड होता है, या एनीवे जंक फूड जो खाए जाते हैं, जो चिप्स एंड ऑल, जो जो स्नैक्स वगैरह खाए जाते हैं,
उस ताल्लुक में इट इज दी जो इनटेक होता है ना वो वहां पर ज्यादा होता है। तो व्हेन यू आर नॉट टेकिंग फूड आउटसाइड होम, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंट्रोल द फूड दिस सॉल्ट इनटेक। यहाँ पर इस आर्टिकल के अनुसार इट वाज अवॉइडिंग मील्स आउटसाइड होम शुड बी द बेसिक इसको कॉमन प्रैक्टिस दैट कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस सॉल्ट ओवरडोज, राइट। तो यहाँ पर घर का बाहर का भोजन जो है वो नहीं खाना चाहिए, उसको मतलब उसको अडॉप्ट करके आप सॉल्ट इंटेक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देन पैसेज नंबर 8 एंड दीस 20 seconds already started, read the passage रिगार्डिंग दिस ओसिरिस रेक्स जो एक मिशन था उससे रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए टाइम ओवर, आंसर द क्वेश्चंस। On which asteroid did the Osiris Rex spacecraft collected the samples? Yeah, did collect the sample. But it starts at 8 o'clock every week. Okay. तो देखिए एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना वो उनकी स्टडी करना अपने आप में एक रिक्वायरमेंट है। स्टडी उनके रीजन दो है कि इन एस्ट्रोनॉट की स्टडी करके हम लोग जो ओवरऑल द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ दिस लाइफ उसका पता क्या सकता है। दूसरा ये अपने आप में थ्रेड बन सकते हैं, तो उस थ्रेड से अपने आप को जिसको होना चाहिए आगाह करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। तो फिर दिस ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ना इसकी स्पेसक्राफ्ट है, इसके द्वारा सैंपल लाए गए थे फ्रॉम दिस बेनू एस्टोराइड है ना, बेनू एस्टोराइड 101955 इट्स एन एस्टोराइड। और वहां से दिस सैंपल, दिस रॉक एंड दिस डस्ट जो है वहां से लाया गया था। इट वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्लेनेट, और ये हमारे प्लेनेट पर अर्थ पर इसको ड्रॉप किया गया था कुछ समय पहले। उससे रिलेटेड आर्टिकल है यहाँ पर। जिस एस्टोराइड की बात की जा रही है, जो अभी प्रेजेंट एस्टोराइड जिसका सैंपल लाया गया है, दैट इज बेनू 101955। बेनू इज द नेम ऑफ द एस्टोराइड जिससे सैंपल अभी कुछ समय पहले मंगाया गया, राइट। चलिए, what is the significant about the Bennu in context of solar systems information? तो इसमें सिस्टम, इसमें जो सिग्निफिकेंस है उसकी बात की गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि दिस पर्टिकुलर जो एस्टेरॉइड है ना, इट इज सर्वाइव, मतलब इट इज सेटल्ड विद इन 10 मिलियन ईयर्स आफ्टर सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। तो इसकी स्टडी अगर की जाती है तो उससे मतलब सोलर सिस्टम फॉर्मेशन की ओवरऑल बिगनिंग जो होती है, जो शुरुआत होती है, उसकी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दिस इज सर्वाइविंग फॉर लास्ट 10 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर दिस सिस्टम फॉर्मेशन। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बेनो एस्टेरॉइड। इसी कारण से इसके सैंपल की स्टडी की जाना आवश्यक है, उससे किया जा रहा है, राइट। उसका सैंपल इसलिए लाया गया है। Why do scientists believe studying Bennu is crucial regarding the Earth? में जो कंपाउंड की बात की गई उनकी स्टडी करके ये पता जा सकता है कि हाउ द लाइफ बिगिन। और ये कंपाउंड जो हो सकते हैं कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, मतलब दे माइट हैव डिलीवर्ड कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ फॉर्म। दैट इज व्हाई टू गेट डाउन टू द हिस्ट्री, गेट डाउन टू द बिगिनिंग, इसकी स्टडी करना आवश्यक है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 39, When did Osiris Rex collect the sample from Bennu? तो इसको देखिए, सैंपल को ड्रॉप तो अभी किया गया है, राइट। सितंबर में अभी 2023 में दी सैंपल्स वर ड्रॉप्ड, है ना, पैराशूट के, इनको मतलब स्पेसक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया था पैराशूट के थ्रू, अल्टीमेटली दे गेट डाउन टू द अर्थ। अभी इसको कलेक्ट कब किया गया? तो देखिए ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, इट्स ट्रेवलिंग एंड 2020 में somehow with of lot of deliberation this dust and this rocks were collected from asteroid, from Bennu, and now they were dropped. So 2020 was the year when they were collected. 2023 have been dropped, and this particular spacecraft has gone for another mission. ये दूसरे मिशन के लिए अब रवाना हो चुका है। So this samples were collected in the year 2020. Then it took time from that time till now, उसको भी drop किया गया। Next question उसी से related है कि now this when this mission is over for Bennu asteroid, the mission is over. तो दिस सैंपल, दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट हैज गॉन टू अनदर लेवल। इसका जो मिशन चेंज हो चुका है, उसको ओसिरिस एपेक्स अब कहा जा रहा है। दिस ओसिरिस एपेक्स इज गोइंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग दिस एस्टेरॉइड, जहां से अगेन सैंपल जो है वहां से लाए जाएंगे, उसके नए
एस्ट्रॉइड की स्टडी की जाएगी। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एफओफिस है ना, 99942 एफओफिस जो है दिस इज द न्यू एस्ट्रॉइड, मतलब अनदर एस्ट्रॉइड जिसके जहां से सैंपल लाने के लिए दिस इट्स ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब उससे एपेक्स अपने आप में नया अवतार इसका हो गया स्पेसक्राफ्ट का, एंड दिस इज गॉन टू दिस एफओसिस नाउ, राइट? सो विद दिस वी कम टू the second last leaderboard of the day, and still leaderboard now it is being followed by Basava. बेटा मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर विद द प्रोनाउंसिएशन। देन फॉलोड बाय मिथिल, गौरव, अना, Akshara, Himanshu, Mahek, Sayan, Tom, and Rajvansh. These are the top 10 contenders. Still, we are left with two passages. Still, we are left with 10 questions. Still, the equation can change because 10 questions में आप कितना जल्दी आंसर करते हैं, कितना करेक्टली आंसर कर सकते हैं. And the score is very close. At least in first two cases, score is very very close. So still, a lot of chances are there. You need to be part of it. You can very well end up winning. So all the best to you. This is the passage number 9. Read the passage and answer. चलिए 20 seconds are over. This is question number 41 for you. By 2050, what percentage of India's population is estimated to be elderly as per the United Nations framework, so UNFP की रिपोर्ट के अनुसार? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो कहा जाता है, यूएनएफपी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन, मतलब जब 2050 तक की बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होगा वह कितना होगा? इट इज इंक्रीजिंग अराउंड, अभी देखा जाए तो 10% जो बढ़ करके बाय 2050 the the percentage of elderly population, the population wherein people are more than 60 years old, उनकी population का percentage हमारी population में overall 20% होगा. The 20% people will be of more than 60 years of age by year 2050. So 20 should have been the correct answer here. As per UNFPA report, which of the following is not highlighted as the significant challenge faced by India's aging population? किसको highlight नहीं किया गया है? सिर्फ फेमिनाइजेशन बोला गया, रूरलाइजेशन बोला गया, अर्बनाइजेशन बोला गया, एंड नन ऑफ द अबव कहा गया. तो इसमें जो रिपोर्ट में देखिए, इसमें अर्बनाइजेशन की बात नहीं की गई है ना, इसमें फेमिनेशन की बात की गई. मैंने नंबर ऑफ फीमेल दिस पॉपुलेशन मोर देन 60 years of age will be on a higher side because life expectancy of female जो होती है वो ज्यादा होती है. नंबर ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में जो जो बात की गई एल्डरली पीपल की, इसकी बात की गई है, वो हायर रहेगा. अर्बनाइजेशन के बारे में इस रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया था, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट चैलेंज जो है ना फेस बाय अर्बनाइजेशन, वो इसमें नहीं बोला गया. तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर as per UNFPA report. चलिए, coming over to question number 43. As per the report, which region has an old age dependency ratio higher than the national average? इनमें से सदर्न पार्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड वेस्टर्न में बोला गया कि किस रीजन में देर इज दिस सिग्निफिकेंट जो एल्डरली एज है उसकी संख्या ज्यादा होगी, है ना. तो सदर्न पार्ट ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो है पर 100 पीपल इज बिटवीन 15 to 59, विच इज मच हायर देन दी 20 जो एवरेज होता है फॉर अदर पार्ट ऑफ द नेशन. तो यहाँ पर सदर्न रीजन जो है, साउथ इंडिया की हम बात करें, वहां पर दिस ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो इट इज बिटवीन 15 to 59 ईयर्स, जो कि नॉर्मली केस में देखा जाता है अराउंड 20 ईयर्स बाकी केस में होता है. तो यहाँ पर इट इज ऑन अ हायर साइड, राइट. तो सदर्न रीजन यहाँ पर आंसर होना चाहिए. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 44. It is likely that elderly population of India will have surpassed the population of children aged up to 15 years, को यहाँ पर बच्चे चिल्ड्रन कहा जाता है. उनकी पॉपुलेशन को एल्डरली पॉपुलेशन विल सरपास, मतलब नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन पीपल हु आर मोर देन दी 60 years of age will surpass the kids more, which will be in the range of 15 years. This is going to happen in year 1946, sorry 2046. तो 2046 में number of elderly people in our population will surpass the number of children in our population. The time will come in year 2046 estimated time ये कहा जा रहा है. Coming to the last question of this passage.
What percentage of elderly in India are estimated to live without income? है ना, अब ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि when they cross the age of 60 years, तो income source may not be there. So in that case, living without income will be around 18.7%. You know, only nine of you could answer correctly. 18.7% of people, elderly people in India are estimated to live without income. Right, उनकी इनकम कुछ इनकम नहीं होगी. That is the reason wherein यहाँ पर the provisioning and the some planning for this particular population is required. Right. So we are coming to the last leg of the quiz. This is the passage number 10. The time started now. Read the passage and then five questions. Remaining five questions we'll discuss. चलिए 20 seconds are over. Coming to question number 46. Try answering. देखिए ये पैसेज जो है इट इज रिगार्डिंग डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो हमारे देश में ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1967 से लेकर 77 के बीच में चलाया गया था, उसके जो जिसको बोलना चाहिए बेनिफिट्स आज भी उठा रहे हैं. इट वॉज लॉन्च बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई है, तो उस रिगार्डिंग ये पैसेज यहाँ पर आर्टिकल वॉज गिवन, उसको हमने यहाँ डिस्कस किया है. इसमें बोला गया विच प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय हिम टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. मतलब फार्मर्स को इसमें इसको होना चाहिए एडवांस, जिसको होना चाहिए सीड्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, हाई वैरायटी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है दैट वाज लैब टू लैंड. है ना, लैब टू लैंड वाज द प्रोग्राम which was initiated by him to bridge the gap between scientific research and the practical application of it. So it was lab to land was the program. Question number 47. Which journal feature Dr. Swaminathan's insightful papers on the science of the potatoes? उनके द्वारा wheat, rice and for so many crops उनके द्वारा रिसर्च की गई थी. तो रिगार्डिंग दी दिस साइंस ऑफ पोटेटोज उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी, मतलब पेपर लिखा गया था, रिसर्च पेपर लिखा गया था. दैट वाज पब्लिश्ड इन नेचर मैगजीन जो होती है, द फेमस मैगजीन, उसमें इसे पब्लिश किया गया था. है ना, तो जनरल विच वी टॉक अबाउट, तो जनरल वॉज नेचर जनरल जो होता है उसमें इसे पब्लिश किया गया था regarding the studies of the science of the potatoes. Now coming over to question number 48. Question number 48 is related to this particular award. जो World Food Prize जो होता है that was given to Dr. Swaminathan. है ना, और उसके प्रोसीड से मतलब उससे जो पैसा मिला था 1987 में अवार्ड उनको पहली, मतलब he was the first recipient of this award. है ना, that was World Food Prize. He was first recipient of the award. The amount of money he got was invested, मतलब what procedure उन्होंने उसको यूज किया था for opening this institute. MS Swaminathan Research Foundation उनके द्वारा ओपन किया गया था in Chennai only. This MSSRF, MS Swaminathan Research Foundation was opened by him by the money he got for the food prize. World Food Prize जो है वो जो उनको 1987 में दिया गया, तो उसके बाद में उनके द्वारा हम्बल बिगनिंग की गई चेन्नई में और ये रिसर्च फाउंडेशन उनके द्वारा ओपन किया गया. Right, this was 1987. MSSRF should be the correct answer. The next question talks about another award. Again, this award was given to him for the first time. He was the first recipient of the award. Sorry, the first World Agriculture Prize was awarded to Mr. M.S. Swaminathan in which of the following year? किस वर्ष उनको दिया गया? तो फूड प्राइज he was the first recipient. Agriculture prize he was the first recipient. In which year this prize was given? किस साल ये प्राइज दिया गया था? तो इट वाज ईयर 2018. लेटेस्ट अभी की बात है, 2018 में अवार्ड स्टार्ट किया गया था. 87 में वर्ल्ड फूड प्राइज था. तो 87 आपने जो आंसर लगाया ना, वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें, एग्रीकल्चर प्राइज की जब बात करें, तो इट वाज ईयर 2018 व्हेन ही वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज. है ना, तो 2018 ही आंसर होगा. विद दिस वी कम टू द लास्ट पैसेज ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज. चलिए आंसर दिस.
देखिए, जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह लाया गया था तो उसके उसके उसकी आलोचना भी की गई थी, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। उसमें क्रिटिसाइज ये किया गया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिजल्टिंग इन दी इन डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड अदर इश्यूज जो बोले गए ना, यहाँ बोले गए थे। तो उसके द्वारा, इनके द्वारा कहा गया, तो उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स के ताल्लुक में उन्होंने कहा था कि देयर कैन बी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन विच इज वेरिन द प्रकृति को इसमें नुकसान ना हो। तो इस तरीके से देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, एम्फेसाइज क्रॉप एंड लाइफस्टॉक प्रोडक्टिविटी विदाउट इकोलॉजिकल और सोशल हार्म। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, उसमें खेती का दायरा बढ़ाया गया। तो उसमें जो आलोचनाएं होती थी कि दिस फर्टिलाइजर के यूज के कारण पे देयर इज द सॉइल इज गेटिंग अफेक्टेड ओवरऑल, उससे डिजीज वगैरह भी हो सकती है व्हेन वी आर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, तो ऑर्गेनिक तो होगी नहीं खेती। तो जो विरोध किया गया या उसका जो आलोचना की गई, तो इनके द्वारा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की गई, जहां पर प्रकृति को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। That was the answer. C should have been the correct answer here. With this, we come to the end of the quiz, and hopefully, we end up having a new winner here. I'm very sorry if I'm pronouncing it wrong. Basava is the winner of today's quiz with 29,332 points. So many congrats to you, and with a lot of fight, it was very, very close fight between Mithil and you end up winning it, right? So many congrats to you, and many congrats to Mithil, Anna, Mahek, Sayan, Arush, Gaurav, Akshara, Imanshu, and Nandana. Right, and to every one of you who participated. So this was the quiz for last week's. This was seventh episode of The Hindu. Next time, next week, Tuesday, again, we are going to meet with another set of questions and the books. Herein, I'm giving you the number. You need to give the contact details so that we'll be able to send across this reward to you. 80853. Actually, so this is the number. You need to send your contact details to me on this number, and we'll be sending you the reward to you. Many congrats to you again, and many congrats to all of you who participated. अरे Zayan, many congrats. एक बार क्या पूरे मतलब this complete quiz you are anyway there present there. So many congrats to you, and I've named every one of you. I made sure I name every one of you who even for once was part of the leaderboard here, right? So all the best to all of you again. We are going to meet next week. Prepare for this week's this The Hindu. Read it well, and you will be able to answer. You will be able to participate. You'll be able to win the quiz next time around. No, no, just need to Amar, acha, Amar, you just need to send the details, your contact details. So your name, phone number, address, you need to send across a message, and that accordingly will send you the reward to you, the book to you. Okay? Chali, with this I conclude my today's discussion here. This was episode number 7. As I told you, next week we are going to meet with episode 8. Same time, Tuesday evening, 8 o'clock. To prepare yourself well. Next time you may end up being a winner. Thank you very much to every one of you. Thanks a lot. We conclude our discussion here now. Okay? Yes, congrats to everyone. Many congrats to you again. Chaliye. Yeah, you send the details and we'll be sending you the contact details you need to send across. Okay? Chaliye. Thank you.